أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العظیم آج جو ہے 17واں پارہ جو ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ Recording in progress. یہ 17واں پارہ جو ہے دو اہم صورتوں پر جو ہے یہ جو ہے اس پر مشتمل ہے۔ ایک سورہ الانبیاء ہے اور دوسرے جو ہے سورہ الحج ہے، سورہ حج۔ یہ نظم کے لحاظ سے میں نے جیسے کہا کہ یہ تیسرے گروپ کی صورتیں چل رہی ہیں جس کا اختتام سورہ نور پر ہوگا، اور اس گروپ کا جو مرکزی موضوع آپ سامنے رکھیں، اس کا مرکزی موضوع وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں اب جو حق و باطل کی کشمکش برپا ہوئی ہے، بالآخر اس کا خاتمہ جو ہے حق کے غلبے پر ہوگا اور باطل کی نامرادی پر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے اس وقت جو بھی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی زندگی کے آخری دور کی بیشتر صورتیں ہیں۔ یہ جو سورہ الانبیاء ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو نظم میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ پچھلی سورہ جس موضوع پر اس کا اختتام ہوتا ہے بالکل اسی موضوع سے اگلی سورہ شروع ہوتی ہے۔ تو آپ جب سورہ طٰہٰ کو دیکھیں گے تو سورہ طٰہٰ ختم ہوتی ہے قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ تو گویا یہ پوری طرح مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ طٰہٰ کی مثنیٰ ہے، جڑواں ہے۔ جس مضمون پر جو ہے سورہ طٰہٰ ختم ہوئی تھی بالکل اسی موضوع سے آپ دیکھیں گے تو اس کا آغاز ہو رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یعنی جو پچھلی سورت تھی اس میں کفار قریش کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کی تھی کہ جو تم کوئی نشانی عذاب دیکھنے پر جو اڑے ہوئے ہو تو تم انتظار کرو، اور اس عذاب کے آنے میں اب کوئی زیادہ دیر نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے بغیر تمہید کے اسی مضمون سے یہ سورہ جو ہے آغاز ہو جاتی ہے، جس میں کفار قریش کو اللہ رب العزت نے یعنی ایک طریقے سے تنبیہ کی کہ حساب کی گھڑی بالکل تمہارے سر پر آ چکی ہے، اور جو تم اپنی سرمستیوں میں کھوئے ہوئے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تو تم کو باخبر رہنا چاہیے کہ رب کائنات نے اس پوری کائنات کو ایک کھلونے کے طور پر نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے، اور جو اس کا پیدا کرنے والا ہے اس نے جو ہے اس پورے ایک پلان کے تحت اس کو بنایا ہے۔ تو جو تمہارا اعتماد ہے تمہارے خود ساختہ معبودوں پر، تو تم جان لو کہ یہ تمہارا وہم ہے، اور تمام اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی تعلیم کا تمہارے اس وہم سے اور تمہارے اس خود تراشیدہ معبودوں سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا حوالہ دے کر پچھلی سورہ میں سورہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی جو ہے حوالہ تھا، اور بالکل نہایت واضح الفاظ میں جو غلبہ حق کی اور فتح مکہ کی بلکہ بشارت وہاں دے دی گئی تھی۔ آیت نمبر 44 جو ہے سورہ طٰہٰ کی دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے بالکل ایک بشارت دے دی ہے کہ ان قریب یہ مکہ ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا اور اس کی تولیت تمہارے ہاتھوں میں دی جائے گی۔ اب یہاں پر جو ہے اس سورہ میں وہ چیز پوری طرح کھل کر پیشن گوئی کر دی گئی کہ کفار قریش جو ہے اب مسلمانوں سے جو ان کی کشمکش برپا ہوئی ہے، تو اس شدید ترین دور میں ایک مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بشارت دے دی ہے کہ تم اسی طرح صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، ان قریب جو ہے یہ خانہ کعبہ کی تولیت تمہارے حوالے کی جائے گی۔ اگر مضمون کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو جس طرح پچھلی صورتیں تھیں، اس سورہ کو بھی ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو یہ سورہ الانبیاء ہے۔ پہلی چیز تو قریش کے جو بکواس تھی اس کو نہایت ہی واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے ان کو وعید سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
की तालीम को तो जो तुम जो है एक मसखरे के तौर पर ले रहे हो, जो तुमसे पहले यानी अंबिया थे, उनके मानने वालों ने भी उनको उनके उनके मानने वाले नहीं बल्कि उनके जो कौम थी उन्होंने भी उनके साथ यही किया। लेकिन तुम इस आईने में देखो कि उनका हश्र क्या हुआ। फिर नबी पाक जो दूसरा इसमें ख़ास तौर से जो अंबिया कराम की सरगुज़श्त सुनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ को बताना चाहता है, जिस हकीकत को खोलना चाहता है कि और इस चीज़ की तालीम दे रहा है कि जिस तरह पिछले अंबिया ने जिस चीज़ की दावत दी, वही दावत ये कुरान दे रहा है, ये नबी दे रहा है। फिर आखिरी जो मजमून है वो बयान ही जैसे शुरू में आगाज़ होता है, उसी से इसका ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंदार कि मुखालफिन जो है वो अपने अंजाम से आगाह हो जाएं, अनकरीब वो अपने अंजाम से दो चार होने वाले हैं। अब आप इसमें देखें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें जो जो अहम मज़ामीन हैं उसमें आप देखेंगे तो इक़्तरब लिन्नास हिसाबहुम, यहाँ से लेके जो आयत नंबर 15 तक, ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद एक तरीके से जो सुन्नत इलाही है उसके मुताबिक जो है कुरैश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खुली धमकी दी कि एक किसी कौम में जब नबी आ जाता है तो ये उसका आखिरी मौका होता है। इस लिहाज से अब तुम अपनी किस्मत के आखिरी मैदान में हो। अब इसके तुम्हारा जो मुहासबे के दिन है वो तुम्हारे सर पर मंडला रहे हैं। अब अपनी बदमस्तियों में अगर तुम खोए रहोगे तो तुम आगाह हो जाओ कि जिस तरह तुम आज इस नबी को का मजाक उड़ा रहे हो, उन्हें साहिर कह रहे हो, उन्हें काहिन कह रहे हो, उनको जो है शायर कह रहे हो, उनको मुफ्तरी कह रहे हो, कभी उनको कह रहे हो कि ये तो ख्वाब परेशान है। तो ये जो है तुम इसके अंजाम से आगाह हो जाओ। उसके साथ साथ जो है इस चीज़ को भी इसमें बताया गया कि जिस तरह अगले अंबिया से जो है को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ जो मोजज़ात के ज़रिए भेजा था, आज तुम उन्हीं मोजज़ात की तुम इस नबी से मांग कर रहे हो। तो तुम तारीख़ के हवाले से देखो कि अंबिया कराम जिस चीज़ की दावत देते रहे थे, क्या ये नबी उससे अलग कोई दावत दे रहा है? ये नबी भी उसी चीज़ की दावत दे रहा है। तो एक तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर हुज्जत तमाम की और ये कहा कि अगर अब इस नबी से तुम टकराने की कोशिश करोगे तो तुम अपने अंजाम को पहचान लो, अंजाम को देख लो। जिस तरह पिछले अंबिया को जिन लोगों ने झुटलाया और उनका मजाक उड़ाया, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पकड़ा, अनकरीब जो है इसी तरह तुम्हें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खसो खाशाक की तरह इस मक्का की सरजमीन से उड़ा देगा। तो ये एक तरीके से पहली 15 आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकसद को बतलाते हुए खुली जो है एक धमकी है। फिर उसके बाद जो आगे की 14 आयतें हैं 16 से 29 तक, इसमें इस हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को सिर्फ अपने जी बहलाने के लिए या किसी ऐसे ही जो है नहीं बना दिया कि हक व बातिल के दरमियान कोई फ़र्क ना हो, नेकी और बदी के दरमियान दोनों एक ही पल्ले में अल्लाह के यहाँ जो है तौली जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बनाने वाला खालिक जो है नहायत ही आदिल है, नहायत ही हिकमत वाला है। ये उसके अदल का तकाजा है कि एक दिन जो है फैसले का हो, यानी आखरत का हो, जिस दिन सिर्फ हक का बोलबाला होगा और जो बातिल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कमर तोड़ देगा। तो इस लिहाज से इनको खुली धमकी दी गई मुशरिकीन मक्का को कि जो तुम आज मज़लूमा जो तुम्हारे शुरका हैं, ख़ास तौर से हम सब जानते हैं कि अहले कुरैश जो थे वो क्या कहते थे कि फरिश्तों की पूजा करते थे और फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये जो पिछले जो अंबिया थे उनको तुम देखो, उन्होंने जो दावत दी वो ये नबी भी उसी तरह दावत दे रहा है। अब जिस दावत को न मानकर जो तुमने खुद से तराशीदा जो तुम्हारे शफा हैं, जिसकी शफात पर तुम उम्मीद लगाए बैठे हो, तो तुम जो है ये देखो कि क्या जो इनकी हैसियत क्या है। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इनकी हैसियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तौहीद के उसी तरह कायल हैं जिस तरह ये नबी तौहीद की तरफ जो है दावत दे रहा है। ये इनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो है ये बिल्कुल सरे तस्लीम खम किए हुए, बल्कि यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें कहा कि ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, बगैर अल्लाह के इज़्न के ये ज़बान भी नहीं खोल सकते, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील में लगे हुए हैं।
तो ये कहाँ से जो है खुदाई में शरीक हो सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर ये भी दावा करेंगे खुदाई में शिरकत का तो हम इन्हें भी जहन्नम में डाल देंगे। इस तरह करके ये धमकी दी कि जिस जिस ख्वाब में तुम जी रहे हो इस ख्वाब से बाहर आने की कोशिश करो। फिर उसके बाद 3 आयतें जो है 30 से 33 तक, उसमें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियों का मुतालबा हो रहा था, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये निशानियों का मुतालबा तुम किस लिहाज से कर रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, तुम कायनात के निज़ाम पर गौर करो, इसमें हर जगह तुम्हें निशानियाँ नज़र आएंगी। तुम जो है खुद अपने आप पर गौर करो, तुम्हें हर जगह अल्लाह की रुबूबियत नज़र आएगी, तुम्हें अल्लाह की रहमत नज़र आएगी, तुम्हें उसका उसका अदल, उसकी हिकमत नज़र आएगी। तो ये तमाम चीज़ें चीख चीख कर कह रही हैं कि इस रुए ज़मीन को चलाने में सिर्फ एक अम्र जो है वो कार फरमा है, सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद इससे साबित होती है। और ये तमाम शवाहिद चीख चीख कर कह रहे हैं कि एक दिन इन सब का खात्मा हो जाएगा। ये नबी जो है उसी चीज़ की तो दावत दे रहा है, फिर तुम जो है उसकी बातें मानने के लिए क्यों तुम जो है एक दूसरे शवाहिद, एक दूसरी जो है मोजज़े की मांग कर रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अगर तुम्हारे पास अकल है, अकल अल्लाह ने दी है, तो फिर किसी और मोजज़े की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। फिर अगली 10 आयतें जो है उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लोग मजाक उड़ाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया है। कहा है कि जो तुम ये सोचते हो कि नबी जो है वो कोई बशर नहीं होना चाहिए बल्कि बाफ़कुल फ़ितरत हस्ती होनी चाहिए, या कोई मालदार शख्स होना चाहिए, तो इससे पहले के भी अम्बिया का इसी तरह मजाक उड़ाया जाता रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी, जो लोग मजाक उड़ाते थे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पकड़ा, और वो भी इसी सहारे पर जीते थे जिस सहारे पर तुम जो है आज जी रहे हो, कि तुम्हारे देवी देवता और ये तुम खुदा की बेटियां बनाए बैठे फरिश्तों को, ये तुम्हें बचा लेंगे। तो उनकी न तो कोई हमीयत काम आई, न तो उनकी हिमायत काम आई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है खुद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस यानी जिस तौहीन रसालत के वो मुर्तकिब हुए थे उसके जुर्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तरह जो है पकड़ा जिस जिस पकड़ के बिल्कुल करीब तुम आज खड़े हो। तो उसके बाद हम देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुतकब्बिरीन थे, जो गुरूर में मुब्तला थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार मजाक उड़ा रहे थे, उनको उनके असल गुरूर की वजह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एड्रेस करते हुए कहा है। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये पेशिन गोइयाँ मांग रहे हैं, हालांकि ये देखें खुलकर, बल मत्ताना हाउलाए आबाहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उमर अफला यरौन अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा। यानी ये कहा जा रहा है कि उनको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तुम जोर आजमाई की कोशिश कर रहे हो, वो तुम देख नहीं रहे हो, तुम अपनी आंखें खोल कर देखो कि ये दावत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं अतराफ़ मक्का की तरफ से तेज़ी के साथ जो है ये मक्का की तरफ बढ़ रही है, और बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा कि कौन दावत गालिब होगी, और जो तुम जिनके भरोसे पर हो वो किस तरह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको, वो जो है उनको रुसवा, तुमको भी और उनको जो है रुसवा करेगा। तो एक तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि अगर तुम बहरे और गूंगे नहीं हो तो तुम जो है जो निशानियाँ ये खुल खुल कर तुम्हारे सामने है इससे सबक हासिल करो, वरना जो है खुदा के ताज़ियान अज़ाब के लिए तुम तो है तैयार रहो। फिर आगे जो है मेरे सामीन व सामियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अम्बिया का इसमें एक ज़िक्र किया है। इसमें ख़ास चीज़ जो है देखें 48 से लेकर 77 तक, ये तकरीबन जो है कुल जो है 27 आयतें, इसमें एक सऊदी तरतीब जो होती है नीचे से ऊपर, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल लास्ट से, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर लूत अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब होगा तो उसी में लूत, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम आता है, फिर नूह अलैहिस्सलाम। तो इन सब की दावत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया, और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि उनके झुठलाने वालों की अंजाम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा करते हुए कहा कि ये जो अम्बिया एज़ाम जिस चीज़ की दावत दे रहे थे वही दावत कुरान पेश कर रहा है, वही दावत ये नबी पेश कर रहा है। तो जब उन्होंने मुखालफत की तो वो इस हश्र से दो चार हुए, तो लाज़िमन इसकी मुखालफत करने के नतीजे में तुम्हारा भी हश्र वही होगा। फिर आगे देखेंगे तो तकरीबन 8-9 आयतें जो है उसमें जो है
ایک صفاتی ترتیب کے ساتھ ان انبیاء کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے صفات کے طور پر، کہ جو اللہ رب العزت نے جن کو صبر اور کسی کو دے کر شکر، اس امتحان سے اللہ رب العزت نے ان کو گزارا، تو وہ 100% اس میں کامیاب ہوئے۔ پہلے میں دیکھیں گے تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے سلطنت سے نوازا، تو وہ کس طرح جو ہے انہوں نے وہ شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک طریقے سے قریش کو دعوت دی کہ ان کی یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم کو بھی اللہ نے آج نوازا ہے تو تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اور دوسرے زمرے میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اسی طرح حضرت ذوالکفل کا حوالہ دے کر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے مظلوم ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، ان کی حوصلہ افزائی کی اللہ رب العزت نے، کہ جس طرح یہ صابر بندے ہمارے اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے، تو ان قریب یہ مصائب آپ کے ہاں آپ سے بھی ٹل جائیں گے اور آپ کو بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نوازے گا۔ تو یہ اس میں ہے۔ اس میں ذوالکفل کے سلسلے میں جو ہے تھوڑی سی علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ یہ ذوالکفل کون تھے۔ بہرحال ہم کو اس میں تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا حزقیل نام تھا، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام انہی کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آیت نمبر 87 سے 91، اس میں کچھ انبیاء کا اجمالی اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو چیز بتلانی چاہیے کہ نہایت ہی تاریک حالات، نہایت ہی مایوس کن حالات، لیکن وہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے اور حیرت انگیز انداز میں ظاہر ہوتی ہے، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیں کس طرح مچھلی میں کے پیٹ سے اللہ نے نکال دیا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام بالکل جو ہے بوڑھے، اب اللہ مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا۔ مریم علیہ السلام، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مسیح علیہ السلام کو دیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتلانا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو اور اہل قریش کو بھی، کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے تو کوئی چیز بھی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتی۔ لا مرد لہ، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کر سکتا، حالات و اسباب مکمل طریقے سے اس کے اختیار میں۔ پھر میرے سامعین و سامعات، آخر کی جو آیات ہیں 92 سے 112 تک، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کو جہاں سے ابتدا ہوئی تھی اسی کو اور تاکیداً ذکر کیا گیا، اور صحابہ کرام کو اطمینان دلایا گیا کہ تمام انبیاء جس چیز کی دعوت دے رہے تھے وہ کام وہ یہی دعوت دے رہے تھے جس کی دعوت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی اس چیز کی بھی طرح اشارہ کیا گیا کہ جس طرح جو ہے پچھلے لوگ جو ہے اختلافات میں پڑے، اور اسی طرح آج یہ بھی طرح طرح کے شوشے دے رہے ہیں، تو اے نبی پاک ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ یہ عذاب کو لانے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں تو ان قریب جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان سے نمٹنے والا ہے۔ ان کا اس وقت یہ ایمان لانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا ایمان لانا بیکار ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا ہے ان آیات میں کہ آخرت کی کامرانی اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گویا ایک فیصلہ کن اعلان کر دیا گیا کہ اب بالکل فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، اور اب جو مہلت ملنی تھی اس مہلت سے اب تم فائدہ، آخری موقع ہے اٹھا لو، ورنہ پھر یہ فرصت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے دعا کرائی گئی کہ اے میرے رب، ان اعداء کے درمیان اور میرے درمیان، میرے صحابہ کے درمیان اب فیصلہ کرنے والے آپ ہیں۔ اس پر جو ہے یہ سورہ تمام ہوتی ہے۔ پھر میرے سامعین و سامعات، اگلی جو سورہ ہے سورہ حج، یہ جو ہے بالکل مکی زندگی کے آخری دور کی یہ سورہ ہے، جب مسلمان ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو ہے قریبی علاقوں میں ہجرت کرنا شروع کر دیے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ مکہ ہجرت کرنے لگے، تو بالکل ہجرت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے لیے اب تیاری کر رہے تھے، تو اس دور میں قریش کو ایک آخری تنبیہ اللہ رب العزت نے دی ہے، اور اس کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی ہے کہ خدا کا عذاب جو ہے اس سے ڈرو۔ جو سورہ کا آغاز ہوتا ہے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنے زبردست انداز میں اس کا آغاز کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ خدا کے غضب سے تم ڈرو، اور جو توحید اور قیامت، اس پہ جو اس کی قطعیت حتمی ہونے پر مؤثر دلائل اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور خاص طور سے اس سورہ میں آپ کو
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का ज़िक्र मिलेगा, बैतुल्लाह का जो मकसद तामीर था उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहस की है, और इस चीज़ पर बहस की है कि इस घर की तौलियत के असल हकदार जो है अब मुशरिकीन मक्का नहीं है, इसके असल हकदार अब मुसलमान हैं, और जो 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 मुसलमानों को इससे इन्होंने महरूम कर रखा है और यहाँ से निकालने के लिए उन पर जुल्म उठा रहे हैं। तो बशारत तो पिछली सूरह में मैंने जैसे जिक्र किया आ चुकी है, इसमें इस सूरह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कतई एक फ़ैसला सुना दिया है कि ये कुरैश जो है ये गद्दार हैं, ये गासिब हैं, और इस जो असल इसके वारिस हैं उनको बेदखल दखल कर रहे हैं, उनको अब धमकी दी जा रही है, और मुसलमानों को इस सूरह में बशारत दी जा रही है कि अब तुम इस मक्के की और इस बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ, अनकरीब जो है हम कुरैश को इससे बेदखल करेंगे और इसका अमीन और मुतवल्ली हम तुम्हें बनाएंगे। इस सूरह के सिलसिले में एक चीज़ और जिक्र करता चलूँ कि बहुत से लोगों ने इसको जो है मदनी सूरह कहा है, हालांकि इसमें जो आयतें हैं 38 और 41, ये 4 आयतें जो है ये हिजरत के बाद नादिल हुई हैं, जिसमें मुसलमानों को ये इजाज़त दी गई है कि जाहिर सी बात है अब रियासत मदीना तश्कील पा चुकी थी, तो उस वक्त जो है अगर वो हज के लिए जाते हैं और कुफ़ार कुरैश जो है उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जहनों में ये था कि हम क्या करेंगे, क्योंकि बैतुल्लाह की हुर्मत उसके साथ साथ अशर हुरुम, तो किसी तरीके से सहाबे कराम या मुसलमान भी इसमें परेशान थे कि हम क्या कर सकते हैं अगर ऐसा वक्त आया। तो इसके लिए जब तक अल्लाह की तरफ से कोई वादे हिदायत न हो तब तक कोई भी इस पे इस दो चीज़ों की हुर्मत को कोई पामाल नहीं कर सकता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुले अल्फाज में कह दिया कि तुम तलवार उठा सकते हो, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए मदद करेगा इंशाअल्लाह नबी। इसमें आप देखेंगे कुरान एक अलग मौजू है कि कुरान की जो मक्की सूरतें होती हैं उसमें बाद मदनी आयात होती हैं, जो जिसकी हैसियत जो है वो एक वजाहत की होती है कि मक्की ज़िंदगी में एक मजमून का जिक्र होता है इजमाली तौर से, लेकिन जो है जब मदीना में उसकी इजमाली सूरतें आती हैं तो तरतीब के लिहाज से उसको वहीं पर जोड़ दिया गया है। ये चीज़ आपको सूरह मुज़म्मिल में भी मिलेगी, आप देखें सूरह मुज़म्मिल में भी आखिरी आयत जो है इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। इसका तफसील जो है आप जब इल्म कुरान पढ़ेंगे तो आपको इस बहस में ये मालूमात आपको मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं सामीन और सामियात 1 से 4 तक आप देखें तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पकड़ से और क़यामत के अज़ाब के इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, तो बगैर किसी दलील के जो ये खुदा का शरीक बना रहे हैं और शफात उनके पर जो है तकिया लगाए बैठे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये क़यामत से बेपरवाही का नतीजा है, ये शैतान की पैरवी का नतीजा है, और शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका तो असल काम ही यही है, खुदा ने जो उसको मोहलत दी है इसी के लिए दी है। तो जो लोग उसके बहकावे में आकर जो है उस शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं वो अपनी शामत को दावत दे रहे हैं, तो जबकि जो है सीधा जो है शैतान जो है उनको जहन्नम में ले जाके फेंकेगा। फिर 5 और 8 ये 3 आयतें जो हैं इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीके से जो है इंसान की खिलकत और ज़मीन जब खुश्क हो जाती है तो फिर बेआब हो गया सहरा में किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोबारा सरसब्ज़ व शादाब कर देता है, इससे पहले भी ये मज़मून आ चुका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जब वो अल्लाह इस पर कादिर है तो तुम क्यों ये सोचते हो कि आखिरत कैसे आ सकती है, ये कैसे नामुमकिन है, तो इसमें तुमको शक में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत दी है उनको कि तुम अपनी खिलकत पर गौर करो, इस कायनात की हिकमतों पर गौर करो, तुम रोज़मर्रा जो है मुशाहदात देखो, आंखें खोल कर देखो, तुमको हर जगह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और आखिरत के हतमी होने की शवाहिद तुमको मिलेंगे, आंखें खोल के देखो। फिर तुम क्यों मुशाहदे अज़ाब के लिए मुतालबा बार बार कर रहे हो। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों आयतों में ये हतमी तौर से कह दिया कि अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह हकीम है, आदिल है, उसका लाजमी तकादा है, कोई शक नहीं कि एक दिन आखिरत का दिन होगा जिस दिन सही सही फैसला हो। फिर आगे आयत नंबर 9 से 16 में जो जिन शुरका पर भरोसा किए हुए थे वो कि आखिरत में अगर हम पर कुछ गिरफ्त हुई भी तो ये हमारे काम आएंगे, ये हमारी शफात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये जो है जो इस मुबाहिसे में तो पढ़ रहे हैं इनको इनके हाल पर छोड़ दो,
ये असल में फिर उसमें मुनाफिकीन का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में ज़िक्र किया है कि जो लोग सिर्फ अपनी ज़ाहिरी मनफ़तों की वजह से खुदा की बंदगी करते हैं, अताअत करते हैं, जब कोई इम्तिहान पेश आता है तो फ़ौरन जो है कतरा जाते हैं। तो ये ऐसे लोग जो है दुनिया में भी खसारे में रहते हैं और आखिरत में भी खसारे में। असल तो इनको मालूम होना चाहिए कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है के हाथ में है। फिर आगे 17 से 24 तक मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्ली दी है कि तमाम जो यानी तमाम जो मुखालिफिन हैं और जो जितने जो है इससे पहले के लोगों ने मुखालफत की थी, सबको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि वो सब एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदालत में पेश होंगे। और जो आज खुदा की वहदानियत के कायल हैं या जो कहिए कि दूसरे अल्फाज में हक पर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कल कामयाब करेगा। और जिन्होंने बिदअतों में पढ़कर खुदा के दीन को बिगाड़ा है, फैसले के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जहन्नम में दाखिल करेगा और फिर जो है वो हमेशा हमेशा की नाकामी में रहेंगे। फिर मेरे सामीन और सामियात, असल जो मौजू शुरू होता है यहाँ से, जो 25 से 37, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो असल मिल्लत इब्राहिमी है और बैतुल्लाह के मकसद की तामीर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजाहत की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत असल क्या थी, बैतुल्लाह को क्यों उन्होंने तामीर किया था, और इसके असल वारिस और मुतवल्ली जो ये आज समझे बैठे हैं, ये उनका जोम है। और इस घर के असल जो है जो वारिस होने चाहिए, जो ये नबी और उसके फॉलोअर होने चाहिए, जो आज उसके दरवाजे इन पर बंद की कर रहे हैं और इस घर को जो है शिर्क की आमाजगाह बना दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को हज और तवाफ़, इसके लिए वहीं पर आपको कुछ कुर्बानी का जिक्र मिलेगा, मनासिक हज का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सिर्फ इसलिए ज़िम्नन किया है कि असल जो ये वरासत इब्राहीमी थी उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीम थी क्या, जिसको तुमने आज मस्ख़ कर दिया है। तो उसको जानने की कोशिश करो। आज ये नबी जो है या इसके जो सहाबा हैं उस मिल्लत इब्राहीमी की अहया के लिए उठे हैं। तो अनकरीब जो है इस तुम उनको जो इस घर से निकाल रहे हो, अनकरीब जो है हिजरत होगी और हिजरत के बाद जो है ये अनकरीब जो है इनको जो है इसकी तौलियत दी जाएगी। फिर 4 आयतें जो मैंने बताया इससे पहले, वो 4 आयतों पर बहस हो चुकी है कि मुसलमानों को एक तरीके से मुनज़्ज़म जमात मुनज़्ज़म शक्ल में यानी रहकर जो है एक इक़दाम करने की दावत दी गई है। क्योंकि ये बात सवाल उठ रहा था बार बार कि अब अगर हम हज के लिए जाएंगे तो अय्याम जाहिलियत में भी हम सब जानते हैं कि इन महीनों की बहुत ज़्यादा हुर्मत थी, उसका खास लिहाज किया जाता था। इस लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शक को दूर कर दिया, कहा कि तुम अपनी अगर तुम्हें रोका जाता है तो तुमको जो है तुमको हथियार उठाने की इजाज़त है। और इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, दरअसल ये पॉइंट जो है बहुत अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि बैतुल्लाह की तत्हीर जो है वो एक तत्हीर के लिए जो है एक मुक़द्दस ये जिहाद शुमार किया जाएगा। असल चीज़ तो ये इस बैतुल्लाह पर गासिब हैं जो कब्ज़ा किए हुए हैं और रोक रहे हैं। अब ये जो है इस आड़ में कि ये जो है हरम है, ये जो है अशर हुरम है, तो इसके लिए जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इनसे जंग करना ये तक़वे के मुनाफी नहीं है, बल्कि जो तक़वे ये ऐन तक़वा है। वरना होगा क्या कि जितनी भी मसाजिद हैं, जितने भी चीज़ है, अगर कुफ़ार और शयातीन इन 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 फजूलियों से जो है उसको जो है एक तरीके से आड़े लेकर ये करें तो ये तमाम मसाजिद जो है एक बुत और शिर्क की आमाजगाह बन जाएगी। तो असल उसको निजात से पाक करना ये असल जो है दीन इस्लाम का मकसद है, जिसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काम किया था। अब मेरे दोस्तों 42 से 52 तक जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीख़ के शवाहिद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कौम अहले कुरैश को धमकी दी है कि जिस तरह जो है पिछली कौमों ने रसूल की तकज़ीब की, नतीजतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रुए ज़मीन से मिटा दिया और उनके खंडरात आज सिर्फ बाकी हैं। उसी तरह जो है अनकरीब अगर तुम भी उसी रविश पर चले तो फिर जो है तुम्हारा भी वही हश्र होगा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीके से कहा गया कि ये जो अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है जो तक़वीम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैलेंडर है, वो तुम्हारे यहाँ का 1000 अल्लाह के यहाँ एक दिन के बराबर है। तो अल्लाह के यहाँ तो ये बिल्कुल करीब है, इनको अलग से भले से ये दूर नज़र आ रहा है। फिर नबी पाक 53 से 57 तक की आयत में आप देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को बतलाने की कोशिश की है कि जो जो लोग जो है इस नबी की दावत को नहीं मान रहे, वो दरअसल शयातीन
के रास्ते पर चल रहे हैं और शैतान जो है इनको और ज़्यादा पुख्ता तर बनाता जा रहा है। तो ए नबी पाक आप इनको छोड़ दीजिए, ये जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। फिर सामिन सामियात हम देखते हैं कि अगली आयत में 58 से लेकर 64 में उस दौर में हिजरत होने लगी थी, तो या हिजरत के लिए जो लोग जो है तैयारी कर रहे थे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशारत दी है और कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताईद उनके साथ रहेगी। और फिर आखिर में जो है 65 से लेकर 70 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है फिर से जो लोग कुफ़ार मुतालबे अदाब कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि उनको जो मोहलत मिली हुई है, हिकमत का तकाज़ा ये है कि वो इस मोहलत से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का जो पैमाना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत में जल्दी करता है, लेकिन कहर करने में वो ज़रा थोड़ा धीमा है। तो इस लिहाज से इस मोहलत से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि इनके मामला को अल्लाह के हवाले करें, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दरमियान फ़ैसला कर देगा। फिर 71 से 76 तक जो है जो शफ़ाअत बातिला थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर आखिरी ज़र्ब लगाते हुए मुशरिकीन को ये कहा है कि जिन शुरका और शफ़ा के तो ऊपर ये एतमाद करके बैठे हैं, खुदा की अदालत में ये ज़र्रा बराबर इनके काम आने वाले नहीं। और आखिर में जो है 77 से 78 तक ख़ात्मे सूरह में मुसलमानों को बहैसियत जमात जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़िताब करके कहा है कि खुदा की इबादत, उसकी राह में जिहाद की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकीद करते हुए कहा कि अब मिल्लत इब्राहीमी के असल वारिस तुम हो। खुदा ने तुमको जो है मुस्लिम के लक़ब से मुमताज़ फरमाया है। अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि खुदा के रसूल ने जिस तरह तुमको हक़ की गवाही दी है, उसी तरह तुम अल्लाह के बंदों पर हक़ के गवाह बनकर खड़े हो जाओ। नमाज कायम करो, ज़कात का अहतमाम करो, खुदा के हुक्मों पर जमे रहो। वही तुम्हारा मौला है, वही तुम्हारा कारसाद है। नेमल मौला व नेमल नसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले कुरान में से बनाए। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबीअ क़ुलूबिना व जलाल अहज़ानिना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान का सच्चा शहदाई बनाए और हमें कुरान को इसी तरह जो है समझकर और उसके पैगाम को अख़ज़ करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।